Hello students, now I am discussing illustration number 4 with you and I am giving hints for solving the question number 4 and solution number 4. Okay, let's see. The first transaction is started business with cash rupees 1,20,000. You know very well. Now though you have done 3 questions and 3 illustrations, so you can tell easily what will be the effect of this transaction on the accounting equation. Started business with cash will be added to one side in capital and one side in asset in cash rupees 1,20,000. Okay, so we are getting a equation 1,20,000 assets and 1,20,000 are capital. Okay, in the next transaction, rent is received rupees 10,000. This rent is received. So received in the form of cash and rent is income for business. If there will be rent paid, then rent will be expense, but rent received is an income. Okay, so incomes are added to capital and expenses are subtracted from capital. In the same way, profits are added to capital and losses are subtracted from capital. Okay, you will keep it in your mind that the profits and incomes are added to capital and losses and expenses are subtracted from capital. Okay, this rent received rupees 10,000. So 10,000 will increase in cash and 10,000 will increase capital also. So after second transaction also our accounting equation is equal. Now let's see the third transaction. Third transaction is invested in shares of rupees 50,000. This is new transaction for you. Invested in shares. सपोज कोई बिजनेस है, हम भी हैं, हम जैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं. तो शेयर्स खरीदना मतलब वहाँ पर अपना पैसा लगा देना, हम उस कंपनी के ऑनर हो जाते हैं. इसकी डिटेल्स शेयर्स होते क्या हैं ये आप नेक्स्ट क्लास में रीड करोगे या थोड़ा सा और जब आगे अकाउंटिंग से फैमिलियर हो जाओगे तब आप अच्छे से जान पाओगे व्हाट आर द शेयर्स. अभी आप इतना समझ लोगे, शेयर्स आर द प्रॉपर्टीज़. अभी जो हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड मतलब परचेज किए हैं शेयर्स, तो ये हमारी अराइज हो जाती है यहाँ पर प्रॉपर्टी. तो वन साइड इन एसेट्स दे विल बी टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट. ओके, रुपीज़ 50,000. In assets, property are the shares rupees 50,000. Okay, this 50,000 is added to the shares and 50,000 shares purchase किए तो 50,000 cash is paid, so it will be subtracted from the cash also. A new equation will be, now we are having a cash, subtract किया 50,000, 80,000 cash, 50,000 shares and here we have 1,30,000 capital. Next transaction is received dividend rupees 5,000. ये हम जो शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं ना, इस प्रॉपर्टी से हमें मिलता क्या है. ये जो हमारी शेयर्स हैं 50,000, इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट क्या होता है. जिस भी कंपनी के हम शेयर्स खरीदेंगे उस कंपनी के प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं और उन प्रॉफिट्स जो हमें मिलते हैं उसका नाम होता है डिविडेंड. तो अगेन डिविडेंड इज इनकम. इनकम होगी, इट विल बी एडेड टू कैपिटल एंड रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश. So 5,000 will be added to cash and 5,000 will be added to capital. Okay. Our next transaction is purchase goods on credit rupees 35,000. Goods purchase किए on credit. तो suppliers from whom we purchase goods on credit become our creditors, liability. Okay. And one side assets arises goods rupees 35,000. So in assets stock rupees 35,000 and in liabilities creditors increase rupees 35,000. Again accounting equation satisfies. So the next transaction is paid cash for household expenses rupees 7,000. These household expenses, whose household expenses? Proprietors, owners household expenses known as drawings. These are the drawings. So drawings are subtracted from capital and payment is done na, so
पेमेंट इज़ डन 7,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश ऑल्सो, तो कैश भी हमारा कम हो गया 7,000 एंड ड्राइंग्स थी, सो ड्राइंग्स भी हमारी कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो दिस साइड कैपिटल विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय ₹7,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹14,000. हमने कैश सेल किए हैं, मीन्स गुड्स सेल कर दिया और बदले में हमें कैश मिल गया. जो गुड्स हमने सेल किए हैं कॉस्ट थी उनकी 10,000 and the selling price is 14,000, so we are making a profit of ₹4,000. So 4,000 profit will be added to capital and 14,000 cash comes by sale of goods, cash is coming, so 14,000 will be added to cash and 10,000 goods gone from the business. 10,000 के goods चले गए तो 10,000 हम अपने goods में से माइनस कर देंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे and 4,000 profit will be added to capital. So the next transaction is cash paid to Ragini ₹35,000. This cash is paid na, cash paid to Ragini ₹35,000. So 35,000 cash paid, cash will subtract from the cash 35,000 and in creditors 35,000 के क्रेडिटर्स थे हमारे पास, 35,000 के क्रेडिटर्स अब ख़त्म हो गए बिकॉज वी हैव पेड टू देम, सेट ऑफ कर दिया उनको, पे कर दिया. नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी मोर क्रेडिटर्स, एनी मोर लाइबिलिटीज़. नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. दिस इज ऑल्सो न्यू ट्रांजेक्शन फॉर यू. दिस मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. चाहे हमारे पास कैश रहे या हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आए, बोथ आर द प्रॉपर्टीज़, दोनों ही हमारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं. तो एक प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज़ हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम हो गई. कैश डिक्रीज़ हो गया और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज़ हो गया. सो वील सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश ₹20,000 एंड द न्यू एसेट, न्यू प्रॉपर्टी बैंक इज अराइज, बैंक बैलेंस इज ₹20,000 विल बी एडेड. So the final accounting equation, cash we are having 37,000, shares we are having 50,000, stocks 25,000, bank ₹20,000 and this side total will be 1,32,000 and this side also we are having a capital of ₹1,32,000. सी स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमने जो कैपिटल लगाई थी वो कितनी लगाई थी, 1,20,000 और आज हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होके कितनी हो चुकी है, 1,32,000. दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स. तो बिज़नेस में हमारे प्रॉफिट्स हुए तो हमारी प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज़ हो गई और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई, 1,32,000. दिस कैपिटल इज़ द इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस. बिजनेस की ये इंटरनल लाइबिलिटी है. टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ में भी हमने डिस्कस किया था ना. बिजनेस ने जब भी बिजनेस बंद होगा तो ओनर बिजनेस से कितना पैसा ले सकता है, 1,32,000. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो. लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. आई एम गिविंग यू हिंट्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 4. Kunal started business with cash ₹2,50,000. You can easily do one side cash will increase and one side capital will increase. And the second transaction is he purchased furniture for cash. Means purchased furniture, one property arises और बदले में क्या दिया, कैश दिया, one property decrease. कैश डिक्रीज हो जाएगा 35,000 and furniture will be added to the assets ₹35,000. Next is he paid commission. अब लिसन केयरफुली, पेड कमीशन इज़ एन एक्सपेंस. अगर यहाँ पर होता रिसीव्ड कमीशन देन इट विल बी द इनकम. सो एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. पेड कमीशन, कमीशन ₹2,000, 2,000 को हम क्या करेंगे, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस वी विल डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल एंड पेमेंट इज मेड इन फॉर्म ऑफ कैश. सो कैश विल ऑल्सो बी डिक्रीज्ड विद ₹2,000. नेक्स्ट इज़ ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000. 40,000 के गुड्स हमारे पास आ गए, सो स्टॉक विल इंक्रीज 40,000 बट पेमेंट इज़ नॉट मेड इन फॉर्म ऑफ कैश. हमने 40,000 पे नहीं किया है, वी हैव टू पे दैम इन नियर फ्यूचर. सो दीज आर आर लाइबिलिटीज़ नोन एज क्रेडिटर्स. तो इसको हम लाइबिलिटीज़ में भी प्लस कर देंगे, क्रेडिटर्स में, और हमारे एसेट्स में ये स्टॉक में प्लस हो गया 40,000.
एंड द नेक्स्ट इज ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश ₹26,000। हमने जो गुड्स सेल किए बदले में हमें कैश मिल गया। 20,000 के कितने में सेल किए? 26,000 में। तो कैश में कितना प्लस करेंगे? 26,000। गुड्स कितने चले गए? 20,000 के। गुड्स में से स्टॉक में से माइनस करेंगे 20,000 और 6,000 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट्स आर एडेड टू कैपिटल। सो इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल में 6,000 प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। ओके, नाउ यू कैन डू इजीली क्वेश्चन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4।